So dear students, in this lecture we will learn what is NDFA, NFA or non-deterministic finite automata, for non-deterministic finite automata, or yeah, we can say the automation, or how the finite automata will work, and we will also learn how this non-deterministic finite automata is different from deterministic finite automata, right? So first of all, let's start with this definition. A finite automata is said to be non-deterministic if there is more than one possible transition from one state for particular input symbol, right? यहाँ पे क्या है कि जब हम DFA में थे तो DFA में हमने क्या देखा था, DFA क्या करता है कि अगर लेट्स से वी आर इन Q0 state and there is an input symbol 1, yeah, we can say that A, so there is only one possible path from this स्टेट 2 फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट सिंबल. मतलब हम Q0 से अगर A इनपुट करते हैं तो A इनपुट करने के बाद वी हैव ओनली जस्ट वन पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम दिस स्टेट 2 फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट सिंबल. इससे ज़्यादा मोर देन वन नहीं रख सकते. बट नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या कहता है कि लेट्स से वी आर इन Q0 स्टेट एंड वी हैव अ करंट इनपुट सिंबल A, then there can be more than one possible transition for this particular symbol input A. So this is known as non-deterministic finite automata, right? Either I can stay with input, either I can let's check again, let's see what is the difference between DFA and NFA. Let's say we are on Q state Q0 and we have applied input symbol A, and after applying input symbol A, it may be that we can transit to more than one state for a particular input symbol A, right? Then that's why it is known as non-deterministic finite automata, right? Technically, yeah, in terms of mathematics, in terms of automata, the definition is NFA can be represented by a 5-tuple where Q, sigma, Q naught and F are same as DFA, only difference is in transition function. Q is a finite set of states, sigma is a finite set of input symbol called alphabets, Q0 is the initial state which is an element of Q, F is a final state which is a subset of Q. And this transition function, अगर हम DFA में थे तो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, Q इंटू सिग्मा इंटू Q. बट जब हम NFA में हैं, NDFA में, तो उस केस में क्या होगा, देखिए, it is Q into sigma into to the power Q. मतलब this makes power set of states. इसका मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट स्टेट पे अगर प्रेजेंट इनपुट देते हैं तो इसका मतलब we can move more than one state for that particular input symbol. This is known as the NFA, and the basic difference of NFA lies in द ट्रांजिशन फंक्शन. क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है उसका आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, Q इंटू सिग्मा इंटू Q, वहाँ पे किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेट पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन स्टेट पे ट्रांजिट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA. DFA स्टैंड फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA स्टैंड फॉर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट? Second difference is, the main difference between NFA and DFA is their transition function, right? Transition function मतलब आपने Q into sigma into Q, next possible state to Q. और जब हम इसमें आते हैं NFA में तो it's Q into sigma in union epsilon. epsilon भी हो सकता है, और that is lies 2 की power Q. नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ Q. हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल सेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट होगा किसका, Q का. जबकि यहाँ पे क्या था, केवल नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट्स बिलोंग्स टू Q, वो Q में से बिलोंग करता है, बट यहाँ पे पावर सेट हो सकता है, राइट? फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट सिंबल देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन इन DFA. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए केवल एक ही ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है, कहाँ, DFA में. लाइक सपोज को मुझे DFA बनाना है स्टार्ट विद A, तो Q नॉट, या वी कैन से दैट मुझे DFA बनाना है कंटेनिंग A. किसके लिए बनाना है, कंटेनिंग के लिए. तो कंटेनिंग A के लिए मैंने Q नॉट A इनपुट किया एंड Q1, एंड दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट, राइट? तो यहाँ पे DFA क्या कहता है, हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए. मैंने कंटेनिंग के लिए ये बना दिया. तो अगर 0 इनपुट करते तो हम जाएंगे Q1 पे, और B के लिए ये हो गया रेस्ट A. बट यही काम अगर मैं
NFA में करता हूँ तो फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट सिंबल देयर कैन बी मल्टीपल स्टेट एट वन टाइम, लाइक Q0। पहली बात तो DFA में जैसे DFA में हर एक इनपुट हर एक स्टेट से हर एक इनपुट का ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा कोई NFA में रिक्वायर्ड नहीं है। देयर मे और मे नॉट बी दैट ट्रांजिशन, कि यहाँ पे हर एक इनपुट के लिए हर एक स्टेट ट्रांजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखो जैसे मुझे यहाँ कंटेन ए के लिए बनाना है, तो कंटेन ए एंड इट इज़ Q1, दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट। अब इससे पहले कितने भी ए और कितने भी बी हो सकते हैं, यहाँ पे भी कितने भी ए और कितने भी बी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट सिंबल देयर इज ओनली वन स्टेट, यहाँ पे केवल एक इनपुट सिंबल के लिए केवल एक ही स्टेट है। बट यहाँ पे क्या होता है, फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट सिंबल देयर कैन बी मल्टीपल स्टेट एट वन टाइम। जैसे ए के लिए मैं Q0 पे भी स्टे कर सकता हूँ एंड आई कैन मूव फ्रॉम Q0 टू Q1, राइट। तो दिस इज द अनदर डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज that state is not allowed, that state is allowed in DFA but that state is not allowed in NDFA. what is that state? एक ऐसी स्टेट जिसपे किसी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल होने के बाद अगर हम वहीं पे रीच करते हैं, बार बार उसी पे ट्रांजिट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेड स्टेट। सपोज मुझे बनाना है स्टार्ट विद ए, DFA। मुझे क्या करना है, एक DFA डिजाइन करना है जिसमें हर एक स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो, ए से। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए Q0, फिर आप क्या इनपुट करोगे ए एंड दिस इज Q1, ये आपका फाइनल स्टेट हो गया। आपको पता है स्टार्ट विद ए में लास्ट वाले जो भी फाइनल स्टेट होती है उस पर हम क्या करते हैं, 0 और 1 का जितने भी हमारे पास इनपुट 0 1 है ए बी है उन सबका क्या करते हैं, सेल्फ लूप लगाते हैं। अब अगर स्टार्ट हमारा स्ट्रिंग ए से होता है तब तो वी विल ट्रांजिट टू स्टेट Q1, और अगर ए से नहीं होगा, सपोज करो क्योंकि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है, तो अगर पहला करेक्टर बी आता है तो वी विल मूव टू स्टेट Q2, और आफ्टर दैट अगर फर्स्ट करेक्टर हमारा ए आता है उसके बाद कितने भी ए और बी आएंगे वो इसी स्टेट पे मूव करेंगे, देन दिस स्टेट Q2 स्टेट इज नोन एज डेड स्टेट। बट ये क्योंकि NFA क्या कहता है कि आपके हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन होना कोई जरूरी नहीं है, तो देर in NFA there is no need to add a dead state। तो हमारे पास NFA क्या बनेगा, Q0 इनपुट किया A एंड दिस इज Q1, ये स्टेट हो गया, और उसके बाद A, B, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट विद A, तो जितने भी स्ट्रिंग होंगे A से स्टार्ट होंगे, राइट। यहाँ पे क्या था, हमने अगर पहला करेक्टर बी आया तो डेड स्टेट पे जा रहे थे, बट यहाँ पे पहला करेक्टर बी आएगा तो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। पहला करेक्टर अगर ए मिलेगा तो मशीन स्टार्ट होगी, देन इट विल एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ दैट स्टार्ट विद ए, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस इज एप्सिलॉन मूव इज नॉट अलाउड इन DFA, या वी कैन से दैट नल स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब नल मूव इज नॉट अलाउड इन DFA, मतलब यू कैन नॉट चेंज द स्टेट विदाउट एनी इनपुट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा Q0 और यहाँ पे रखा मैंने एप्सिलॉन एंड रीच टू Q1, ये कोई स्टेट है या वी कैन से दैट फाइनल स्टेट है। तो दिस नल मूव इज नॉट अलाउड इन DFA, बट इन NDFA you can change the state, you can change state without any input symbol। फॉर एग्जाम्पल Q0 और मैंने इनपुट किया एप्सिलॉन and this is Q1, तो we can change the state, right। आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसके ट्रांजिशन फंक्शन में दिया भी है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि Q इंटू सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन उसके साथ है, तो यहाँ पे नल मूव या एप्सिलॉन मूव अलाउड है इन NFA, बट इन DFA एप्सिलॉन मूव इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय डिफॉल्ट ऑल DFA आर NFA, but its reverse is not true, means that 6 point क्या दे रखा है, not all NFA are DFA। सारे DFA by default NFA होते हैं, but सारे NFA DFA नहीं होते, right। so this is the difference। and next DFA require more space, क्योंकि यहाँ पे number of states हमारे ज़्यादा होंगे as compared to NFA। NFA require less space than DFA। DFA is more difficult to construct और NFA is easier to construct, right। क्योंकि अगर हमें किसी के लिए भी बनाना है तो वो DFA हार्ड होता है as compared to NFA, right। तो this is the main difference between NFA and DFA, right।